اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ فرسٹ قرآنی دعائیں سیکھے تھے نا؟ کس کو یاد ہے؟ علم میں زیادتی کی دعا کوئی بول سکتے؟ نہیں، یہ حدیث سیکھے تھے پہلے ہم۔ چلو جانے دو، میں ہی بول رہی ہوں، آپ لوگ سنتے جائیے۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی میم۔ ہاں، تو دیکھو آج کا ہمارا سبق 4 چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ہمیں حدیث سیکھنا ہے، قرآنی دعا سیکھنا ہے، روزمرہ کی دعائیں سیکھنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنا ہے، اور 5ویں چیز عقیدہ، ہمارا ایمان اور عقیدہ کیسا ہونا ہے وہ چیز سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ آپ لوگوں سے بہت ادباً گزارش کرتی ہوں، بڑے ہی اطمینان سے میری باتوں کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے، آپ کے مستقبل آنے والے زندگی میں بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ بظاہر آپ کو یہ باتیں اگرچہ پوری نہ سمجھ میں آئے، مگر جیسے جیسے آپ لوگ بڑے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ آپ لوگ غور سے میری باتیں سنیے اور پھر اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیے، ارادے سے سنیے۔ انشاءاللہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ آپ تمام کے لیے آسان کرے گا، کیونکہ آپ ہمارا مستقبل ہے۔ آپ ہمارے ایمان کے، اسلام کے دائی ہیں۔ دائی یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا۔ آپ تمام بچے ہیں نا دائی بننا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، بالکل ایسی خواہش رکھنا ہے۔ سب میں پہلے تو موحد ہیں ہم، اس کے بعد دائی بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ بہت چیزیں بننا ہے، مومن بننا ہے، بہت ایمان والے بننا ہے۔ تو پہلی چیز، جی بیٹے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ویری گڈ۔ یہ آپ لوگوں کا ارادہ ہی آپ لوگوں کے لیے اجر ملنے کا سبب بن رہا ہے۔ سنیں بچوں، آج سے ہی آپ لوگوں کو اجر ملنا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو میں پہلے حدیث بتا رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ ہم سن چکے۔ میں پرانی حدیثیں ایک بار اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نئے بچوں کو پہلے تو معلوم ہو جائے اور جو پرانے ہیں ان کو ریوائز ہو جائے۔ تو اس کا ترجمہ کسی کو یاد ہے پرانے بچوں میں سے؟ الدین النصیحہ نہیں ہے میم۔ زویا مہوش آپ بولو۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جی، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک منٹ بچوں، میں ذرا ایک میسج کر لوں۔ جی، یعنی خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک دوسرے سے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، اخلاق سے رہنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اخلاق کا نام خیر خواہی بھی بول سکتے، بھلائی بھی بول سکتے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا بھی کہلاتا۔ ٹھیک ہے؟ مختصر سمجھتے جائیے۔ پھر اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑتی معلوم؟ آپ کو اپنے اوپر کسی نگران، کسی ایسے بڑے شخصیت، بڑی چیز کی ضرورت پڑتی جس کی ڈر سے آپ ہر چیز کریں۔ دیکھو اللہ سے ہم کو محبت بھی ہے اور اللہ سے ہم ڈرتے بھی ہے نا بچوں؟ اللہ سے ہم کو محبت بھی ہے، سب میں زیادہ محبت ہمیں اللہ سے ہی کرنا ہے، اور ہم سب میں زیادہ ڈرتے بھی کس سے ہیں؟ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ ہاں، ڈرتے کیوں ہے؟ پہلے محبت بتاتی ہوں۔ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم، اللہ نے ہمارے لیے یہ ساری دنیا بنائی، ہمارے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ دے رہا، ہوا، پانی، غذا، ہماری زندگی میں ہر چیز ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی۔ دوسری چیز،
हाँ, अल्लाह हमारे लिए बहुत सी नेमतें बनाई हैं, ठीक है, इसलिए हम उसके लिए मोहब्बत करते हैं और हमारी सहूलत के लिए, और बनाता ही जा रहा है। जैसे पहले का हमारे माँ बाप का जमाना था, हमारा वैसा नहीं है, हम और एडवांस में आगे चल रहे। पहले ऐसे ग्राइंडर नहीं थे, फ्रिज नहीं था, कूलर नहीं था, आज हर चीज सहूलत से मिलते जा रही, फोन मिलते जा रहा, कहीं दूर दूर बैठे से वाले इस फोन के जरिए जुड़ के अच्छे काम भी कर रहे, थोड़े जो जिनको अल्लाह ने नेक तौफीक नहीं दी वो बुरे काम भी कर रहे, मगर अल्लाह हम तमाम को उस बुरे कामों से बचाए, ठीक है। और दूसरी बात, हमें अल्लाह का डर क्यों है? क्योंकि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। हमसे अगर कोई बुराई सरजद हो जाए तो अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की आग से बचो। अल्लाह के पास ऐसी आग है जिसका ईंधन, जिसको जलाया जाएगा इंसानों और पत्थरों के जरिए, तो वैसी आग से भी डरना है, अल्लाह की नाफरमानी से डरना है, अल्लाह की बातों को नहीं करे, जो करो बोल रहे वो नहीं करे, जो नहीं करो बोल रहे वो कर रही, तब भी डरना है। इसलिए डरना है क्योंकि हमारा सबके ऊपर हमारा निगरान अल्लाह है। इसलिए दूसरी हदीस में फरमाया इत्तखिल्लाह हैसुमा कुंता। इसका तर्जुमा कोई बोलेगे काशिफ? जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। हाँ, इसलिए ये जहन में हमें हमेशा रखना है कि अल्लाह से हमें डरना है, जहां भी जाएं, चाहे लोगों के साथ हो या लोगों से हटके हो, तब भी हमें अल्लाह से डरना है और ये महसूस करना है कि अल्लाह हमारा हमें देख रहा है, ठीक है। ये हमारा डर हमारे लिए गुनाहों से बचने का जरिया बनता, ठीक है। फिर आपस, तीसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको समझा रहे हैं, ला तहासदू। क्या माने? मैं ये आप लोग परेशान मत हो, मैं पूरे फोटोज जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को ग्रुप में भेज देती हूँ, आप लोग उसको देख के सीख सकते, ठीक है बच्चों। आप लोग कैमरा शेयर नहीं हो रहा इसलिए मैं नहीं भेज सकी, तो ये याद रखो, ला तहासदू, आपस में हसद ना करो। हसद किसको बोलते हैं? मैं बोली थी इससे पहले भी। आफरीन, नक्शा कोई बोलो, हसद क्या, किस चीज का नाम है? जलना में। हाँ, किसी की नेमत देखकर हमें जलन महसूस होना, अरे वो नेमत उनकने कई को है, हमाको मिलना था, उनकने नहीं रहना था, ये हसद कहलाता। मगर रश्क क्या है? किसी की नेमत को देखकर हम भी ख्वाहिश करना कि वो चीज हमारे पास भी हो, उनसे छिन जाना नहीं, उनकने नहीं रहना, बल्कि ख्वाहिश नहीं रहती इसमें, बल्कि हम दुआ करना अल्लाह वैसा इल्म हमें दे, वैसी दौलत हमें दे ताकि हम तेरी राह में खर्च कर सके, तेरा इल्म फैला सके, ये ख्वाहिश करना, इसको रश्क कहा जाता। वो कर सकते, मगर हसद कर सकते एक दूसरे से नहीं, नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। फिर हदीस नंबर 4 थी, मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। क्या बोल रहे अल्लाह ताला? अल्लाह ताला कहाँ रहते? आसमानों के ऊपर ना, और हम कहाँ रहते? जमीन के ऊपर। तो अल्लाह ताला दूसरी हदीस में फरमा रहा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, इंसानों तुम जमीन वालों पर रहम करो, आपस में एक दूसरे पर रहम करो। आसमान वाला कौन है? वो अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। समझ रहे? कितनी प्यारी बात है ना। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो, भाई बहन का, बहन भाई का, माँ बाप का, बच्चे माँ बाप का, माँ बाप बच्चों का, बड़ों का अदब, ये सब चीजें आ जाती इसमें। एक दूसरे की मदद, जैसे कोई पानी लेने जा रहा, हम उठ के जल्दी उनको पानी दे देना, कोई चीज कुछ मांग रहे, हम उसको उठ के दे देना, पकड़ा देना, ये भी मदद में आता है। तो एक दूसरे पर रहम क्या करो, आसमान वाला यानी अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा, ठीक है। ये चौथी हदीस थी। अब पांचवी हदीस देखिए, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की एक शाख है। हया दो चीजों की होती बोली थी मैं, क्या क्या है वो हया में? बोलो आफरीन। शर्म, जी, शर्म व हया, और दूसरी? दूसरी बात गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना भी बोली ना। मैं न्यू बच्चे जवाब दे रहे, माशाल्लाह। उसैद एंड शिफा। जी मैम। जी बेटे बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं टीचर। अच्छा कोई बात। जी बेटे, कुछ पूछना है तो पूरी क्लास के एंड में मैं आपको टाइम देती हूँ, जब पूछिए आप।
कुछ भी डाउट है तो आप लोगों को, ठीक है बेटे? ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रही थी शर्मो हया, एक तो पर्दा करना या अपनी निगाहें नीची करना, इसको भी कहते हैं शर्म। और दूसरी गुनाहों से बचना भी, गुनाहों से दूर रहना भी शर्मो हया में दाखिल है, यानी उससे बचना। गुनाहों के पास जाना पसंद करते क्या हम? नहीं ना। जैसा बुराई से दूर रहते, हम बेहयाई से दूर रहते, बेपर्दगी से दूर रहते, वैसे गुनाहों से भी दूर रहना, ये भी शर्म हया का एक हिस्सा है, ये भी ईमान में दाखिल है। ठीक है, ये दो चीजें मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। मर्द आदमी बुर्खा पहनना नहीं है, मगर अब बाजार में निकले तो अपनी नजर कहाँ रहना, लोगों पे घूरते रहना नहीं, बल्कि नीची नजर रखो। भले घर से बाहर निकले तो नीचे जमीन पे देखते हुए चलो, एक तो फायदा गिरने से बचते, दूसरा अपने काम अपने लिए मतलब रहता। लोगों को देखना, बातें बनाना, इशारे करना, फला फला करना, ये सब गलत है। हमारा इस्लाम इस चीज की तरफ हमें नहीं बुलाता। इसके बाद बोले फिर अत्तहुरु शत्रुल ईमान, हदीस नंबर 6, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। वेरी गुड, माशाल्लाह। यानी ईमान नमाज, रोजा, ज़कात का नाम के साथ साथ पाकी और सफाई का भी हमें हुक्म देता है। हम हर वक्त हमारे जिस्म के अलावा, हमारे जिस्म पाक होना, हमारे कपड़े पाक होना, हमारा घर पाक होना, हमारे किताबें, हर चीज, जो चीज हमारे से ताल्लुक रखती ना बेटे, वो चीज पाक और साफ रहना, ये ईमान का एक हिस्सा है। अगर हम इसका ख्याल न रखेंगे तो शैतान गंदगी में आता और कीड़े मकोड़े गंदगी में आते, तो क्या हम अपने घर को गंदा करना पसंद करते? नहीं ना। नहीं मैम। तो हर चीज, चाहे चप्पल भी क्यों ना हो, बोली थी ना भाई, चप्पल भी अगर हम उतारेंगे तो सलीके से उतारेंगे, एक इधर एक उधर नहीं। हम बचपन से अपने आप को इस चीज का आदी बनाएंगे, पाबंद बनाएंगे कि हमारे कपड़े तो छोड़ो, अलमारी में कपड़े भी जमा के रहना, घर भी साफ सुथरा रहना, हत्ता के बेडशीट भी सीधी रहना, बेड पे हो नीचे हो बिछाते ना अपन, बेडशीट भी सीधी रहना, तकिए का गिलाफ भी सीधा रहना। मैं छोटी छोटी चीजें क्यों करती हूँ, अक्सर हम इस पे गौर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे अंदर सलीका नहीं आता। सलीके को हर कोई पसंद करता, पाकी को हर कोई पसंद करता, तो हम बचपन से चप्पल कैसा सलीके से उतार रहे हैं, देखो माशाल्लाह, कंघे की जगह कंघा रख रहे हैं, पाउडर की जगह पाउडर रख रहे हैं, ग्लासों की जगह ग्लास रख रहे हैं। ये सब अगर हम सीखेंगे तो बाद में हमें तकलीफ नहीं होगी, हम बचपन से सलीके वाले बनेंगे। समझ रहे ना? मैं ये सब बोल रही हूँ किसके लिए? सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आप लोग अमल भी करेंगे। हम लोग अमल भी करेंगे। हाँ, ये सब चीजें मैं इंशाल्लाह आपके मीटिंग में आपके पेरेंट्स से पूछूंगी कि बच्चे ये बातों पे अमल कर रहे नहीं। हम इस्लाम कुरान के साथ साथ इस घर की जिंदगी के बारे में भी उनको सिखा रहे हदीसों के जरिए, तो हमारे बच्चे अमल कर रहे नहीं कर रहे पूछती हूँ मैं। ठीक है, 6 हदीसा हो गए और आज की हदीस पढ़ लो, हदीस नंबर 7, अस्सलातु नूरुन। पढ़िए एक बार, अस्सलातु, अस्सलातु, सब बच्चे पढ़ो, अस्सलातु अस्सलातु नूरुन। हाँ, क्या माने मालूम? नमाज नूर है। क्या माने? नमाज नूर है। नूर के माने क्या है मालूम? अल्लाह नूर समावाती वाला बोल के सुने होंगे। अल्लाह भी एक रोशनी, बहुत बड़ी रोशनी, जिसको हम दुनिया में नहीं देख सकते, बल्कि हमें आखिरत में अल्लाह को देखने की ख्वाहिश रखना है। मगर दुनिया में नमाज हमारे लिए नेकियों के तरफ बताने का नूर बनेगा। कोई बात कर रहे हैं क्या? सुनो बच्चे, नमाज नेकियों का नूर है। हम नमाज पढ़ेंगे, अस्सलातु इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बोले कुरान में एक जगह आता है अस्सलातु, नहीं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हमें बुराइयों और बेहयाई की बातों से रोकती है। सुने बच्चों, नमाज क्या करती है? जो बच्चे या बड़े हो, बड़ों पे तो फर्ज है, उनको मालूम है, पढ़ते भी, मगर अक्सर कोताही कहाँ होती बेटे? बच्चों से होती। नमाज
अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा समझेंगे तो आपको वो नूर नहीं मिलता। ये नूर अल्लाह की तरफ से आ रहा, अल्लाह भी एक नूर है, बल्कि अब तक सुने ना हम। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के करीब होने के लिए हमें नमाज से करीब हो बोल रहा, क्योंकि हम अल्लाह में किसके सामने, सॉरी, नमाज में किसके सामने ठहरते बच्चों? सोच के बोलो। सामने। अल्लाह के सामने। वेरी गुड। जब हम अल्लाह के सामने ठहरेंगे, अल्लाह से बातें करेंगे, अल्लाह से ज्यादा हमारा कांटेक्ट रखेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमें अपने करीब करेगा ना। याद रखे ना। देखो आप ही सोचो, साल में एक मर्तबा कोई किसी से मुलाकात करे तो क्या वो उसको उतनी अच्छी से पहचानता है जो दिन में 5 बार किसी से मिल रहा तो ज्यादा अच्छा पहचानता? नहीं पहचानते। देखो जैसा कि अब मैं हूँ, अब हफ्ते में हमारी 3 क्लासेस है, ठीक है। इससे पहले 2 क्लासेस थी, उससे पहले तो थी ही नहीं। तो अगर साल में कभी हम हफ्ते में 3 बार मिल रहे हैं बोल के, अब मेरे को आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों के नाम याद हो गए, आप लोगों का नेचर मालूम हो गया। जो पुराने बच्चे हैं उनको मैं पहचानती हूँ, आप भी मेरे को पहचानते। अगर कोई क्लास सिर्फ एक बार अटेंड करता, वीकली वंस नहीं, महीने में एक बार ऐसा करेगा, तो वो बच्ची भी मेरे को याद नहीं रहती और मैं भी वो बच्ची को याद नहीं रहती हूँ, मेरी बातें भी वो याद नहीं रखती ना। इसीलिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं, दुनिया में हमें बार बार जिस चीज का मोहब्बत होती उसको याद करना पड़ता, तो जिसको हम याद करेंगे वो हमसे ज्यादा करीब होगा। तो इसलिए हमें दिन में 5 मर्तबा अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाते। अज़ा होती ना होती 5 बार? होती। हाँ, चाहे नमाज पढ़ो। हाँ सुनो बेटे, 5 मर्तबा अल्लाह ताला हमें बुलाते हैं, हय्या अलस सलाह बोल के, अल्लाहु अकबर बोल के शुरू करते और अल्लाहु अकबर बोल के एंड करते, मगर बीच में की तर्जुमा क्या है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ बुला रहे, जबरदस्ती नहीं बुलाते। जिसको शौक है, जिसको अल्लाह से मिलने का शौक है, अल्लाह को देखने का शौक है, अल्लाह की जन्नत में जाने का शौक है, गुनाहों से बचने का डर है, वो अल्लाह की तरफ आता ना, तो वो जो है सो नमाज का पाबंद होता और उसको अल्लाह का वो नूर हासिल होता जिसकी रोशनी में चल के वो अल्लाह से मुलाकात करता। समझ रहे? जो नमाज ही नहीं पढ़ता, हमें तो छोटे हैं। देखो अल्लाह के रसूल ने नमाज छोटे बच्चों को भी पढ़ने का हुक्म दिए, अपने माँ बाप के साथ नमाज पढ़ने की आदत डालते जाओ, चाहे वो छोटे भी क्यों ना हो, उनको अपने साथ लेके नमाज पढ़ो बोल रहे। और जैसे 7 साल के हो गए तो याद से पढ़ाओ, और 10 साल के हो गए तब तक भी उनको आदत नहीं हुई तो उनको मारो। अल्लाह के रसूल बच्चों को प्यार करते थे, मगर नमाज इतनी जरूरी है, इतनी अहम है, जिसके ना पढ़ने पर मारने का भी हुक्म आया। सुन, 1 मिनट रुक जाओ बेटे, हम अज़ान का जवाब दे। हाँ बच्चों, तो हम क्या बोल रहे थे? देखो अभी हमारा जिक्र चल रहा था नमाज का, और इधर अल्लाह की नमाज अज़ान हो गई। क्या बोले इसमें? हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह बोले 2 बार, सुने आप लोग? क्या मतलब? हर जगह पूरी दुनिया में जहाँ भी मस्जिद है ऐसी ही नमाज अज़ान होती है, वहां पर हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह 2 बार बोला जाता है और हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह 2 बार बोला जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, आओ नमाज की तरफ, ऐ बंदो आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आओगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हय्या अलल फलाह, नमाज में कामयाबी है। समझ रहे हैं आप? ये बुलाने का मकसद क्या है? नमाज के अंदर कामयाबी है। नमाज की आदत हमें 7 साल से सीखना है, और 10 साल के तो हो गए तो नमाज पढ़ना फर्ज हो जाती हम पे। अगर नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह ताला हमारे लिए उसकी सजा तैयार कर रहे। समझ रहे ना? आप नहीं दिखती, अब नमाज के लिए नहीं उठते हम, अब क्या हमें चांटा पड़ता या करंट लगता? अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं कराते, बस अकल होनी चाहिए आपके लिए। आप देखो, एक चॉकलेट है जो साफ सुथरा है, एक चॉकलेट है जिसमें मिट्टी लगी हुई है, तो आप कौन सा चॉकलेट लेंगे? साफ सुथरा है तो चॉकलेट लेंगे। क्या है सो चॉकलेट? क्यों मिट्टी लगा हुआ क्यों नहीं लेते? चॉकलेट लेंगे। क्यों लेते? क्योंकि आपको पता है मिट्टी गंदी चीज है, खाने की चीज नहीं है, इसलिए आप साफ सुथरा चॉकलेट लेते। इसीलिए आपको मालूम हो गया नमाज में कामयाबी है और नमाज नहीं पढ़ने में कामयाबी नहीं है।
नुकसान है, अल्लाह से दूर होते हम, अल्लाह के नमाज पढ़ने में अल्लाह से करीब होते, नमाज नहीं पढ़ने में अल्लाह से दूर होते। तो याद रख लो बच्चों, नमाज 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 में हर क्लास में, मेरी जब भी क्लास होती मैं मेरे बच्चों को नमाज की ताकीद करती हूँ। नमाज इतनी अहम है जितनी हमारे लिए, आप यकीन मानो, सांस लेना जरूरी है, जितनी हमारे लिए पानी पीना जरूरी है। ऐसा इतना ऐसा अपना जहन बना लिए ना तो आप नमाज को नहीं छोड़ते। क्यों? पानी पीना छोड़े क्या आप आज तक? नहीं छोड़ते। नहीं मैम। इतना छोड़ रहे हैं क्या? आज 1 घंटा सांस नहीं लेंगे अपन बोल के कभी बोल लेते हम? 1 घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट अगर हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाए, हमारी जान ऊपर नीचे हो जाती ना। लाइट जाने तो गर्मी में कैसे परेशान होते हम। तो ऐसा याद रखना, नमाज नहीं पढ़े तो भी हमें वैसी ही बेचैनी होना बेटे, याद रखो प्लीज। मैं तमाम बच्चों को बोल रही हूँ, आज हमारी हदीस भी आ गई, इससे पहले भी हम जानते थे नमाज इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी जिस तरह नमाज इंसान के लिए हवा पानी ग़िज़ा जरूरी है, इसी तरह नमाज भी जरूरी है। ऐसा जहन बना लो, नमाज को अपने लिए फर्ज समझो। टूटी फूटी नियारे कभी सीखने की कोशिश करो, मगर अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ नमाज को पढ़ो। छोटे छोटे बहाने बनाकर नमाज को छोड़ने की आदत मत डालो। समझ गए ना? नमाज की अहमियत मालूम हुई ना? और बोलूं? जी मैम, मालूम हो गई मैम। तो एक भी नमाज नहीं छूटेगी ना मेरे बच्चों? एक भी नमाज नहीं छूटेंगी ना? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भी बोलना, दिल में इरादा भी करना। खाली मैम पूछ रहे इंशाल्लाह बोल देंगे, नहीं, ये इंशाल्लाह नहीं होता। अल्लाह ताला बोल रहे तुम इरादा करो, फिर मेरा मदद मांगो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैं भी दुआ करूंगी, अल्लाह मुझे भी कभी कोई नमाज ना छोड़ने देना, और हमारे क्लास के तमाम जो बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं, और हमारे मुसलमान बच्चे हैं, अल्लाह उन तमाम को तू नमाज का पाबंद बना। ठीक है? अब नमाज की हदीस हो गई, हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया। चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा चैप्टर में हमारी क्या थी? कुरानी दुआएं। क्या पढ़ना था हमें? कुरानी दुआएं। इसमें हमने सीखा अब तक, पहले तो इल्म, क्योंकि इल्म आने के बाद ही अमल कर सकते ना। इल्म नहीं आया अमल करो बोल तो क्या करना पूछते। ठीक है बच्चों? इल्म नहीं आया अमल करो बोल तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते ना। इसलिए हमें इल्म आना है पहले। तो इल्म के लिए क्या दुआ पढ़ना? रोजाना रब्बी ज़िदनी। वेरी गुड। तर्जुमा बोलो। मुझे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। हाँ, ज्यादती के माने एक्स्ट्रा कर, इजाफा कर दे। ठीक है? अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। चलो उसके बाद हमारा सब में ज्यादा हक किसके ऊपर है? हमारे माँ बाप। अल्लाह के बाद किसका? नमाज तो सुन लिए ना, नमाज के बारे में अल्लाह से जुड़ गए हम। अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल की बातों के बाद हम पर किसका सब में ज्यादा हक है? वालिदैन। वेरी गुड, हमारे वालिदैन। वालिदैन में कौन कौन आते हैं? माँ और बाप दोनों आते। हाँ, हर एक के बेटे, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो, हर एक के माँ बाप उसके लिए बहुत अहमियत रखते, क्योंकि माँ बाप की जैसी मोहब्बत उस्ताद भी नहीं करता। उस्ताद का भी दर्जा कहाँ था मालूम? माँ बाप के बाद आता। याद रखो आप लोग, माँ बाप का हक को अल्लाह ताला ने क्या किया मालूम? माँ बाप के हक को अल्लाह ताला ने, अच्छा दूसरी क्लास शुरू हो गई क्या? तंजीमा? हाँ मैम, 23 पार्टिसिपेंट। हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी क्लास के तो नहीं है, तंजीमा की क्लास शुरू हो रही है। हाँ तंजीमा, आपका टाइम ये है तंजीमा? जी जी जी। अच्छा ठीक है। आज इतना ही याद कर लो बच्चों, आज हमें देर हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
देखो जितना भी इल्म आया ना उसको पुख्ता करने के लिए बेटे अमल जरूरी है। तो आप लोग ये मत सोचो कि अरे हम और नहीं सीखे, बस ये सोचो कि आज जितना सीखा इस पे हम पूरे मुकम्मल अमल करेंगे। क्योंकि सहाबा कराम भी क्या करते थे मालूम, हम जितना इल्म आता था उस पे अमल करके हम आगे इल्म सीखेंगे सोचते थे। इसका ये मतलब नहीं कि हम अमल होए तक करेंगे, बल्कि नहीं, इरादा कर लीजिए आज से ही आप लोग जितनी बातें आज सीखी हैं उस पर अमल करेंगे। अल्लाह हम तमाम को इल्म आलिम बा अमल बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन।